हाँ जी बेटे। सो नैक्सट पुत्तर करते हैं डिटर्मिनेंट ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਰੋ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ 0 ਬਣ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਫਿਰ 1 1 1 ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस क्वेश्चन के हिसाब ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਲਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੋ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋ 2 ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ ਟਾਈਮ ਰੋ 1 ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਟਾਈਮ ਰੋ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਰਡ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਰੋ 2 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰੋ 2 ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 1 ਆਏਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੋ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਰੋ 2 ਪਲੱਸ 3 ਟਾਈਮ ਰੋ 1। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋ 2 ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 1 ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ ਬਟ ਆ 1 ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਐਨੀ ਰੋ ਔਰ ਕਾਲਮ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੋ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਸਮ ਨੰਬਰ ਟੂ ਅਦਰ ਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ R1 ਨੂੰ R1 ਪਲੱਸ 2 R2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਫਾ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। R1 ਨੂੰ 2 R1 ਪਲੱਸ 3 R2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਸਮ ਨੰਬਰ ਟੂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਰੋ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਐਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 10 ਮੰਨ ਲਓ 21 32 let's say 1 2 3 let's say 100 2 ठीक है and 200 300 3 let's say ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਨਟੂ ਦਿਸ तो ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆ ਕਾਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਮ 1 ਲਾਈਕ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ 10 ਟਾਈम्स है ना 20 आ जाएगा 30 ऐदी यहाँ कितना 100 टाइम्स है ना सो 100 आ जाएगा 200 300। सो अगर मैं ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾਣਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ तो ਕਾਲਮ 1 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਮ 1 ਵਰਟੀਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਾਲਮ 1। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਰਾਈਟ C1 ਨੂੰ C1 ਮਾਈਨਸ 10 ਟਾਈਮ C2 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ C1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। तो पहली गल प्रॉपर्टी लाई जा रही है कॉलम 1 से, ਇਹਦਾ मतलब कॉलम 2 ਤੇ कॉलम 3 सेम रहने 1 2 3। ठीक है, 100 2 200 एंड 303। ठीक है, सो कॉलम 1 ਤੇ प्रॉपर्टी लाई कॉलम 2 कॉलम 3 सेम। प्रॉपर्टी की कहती है कॉलम 1 माइनस 10 टाइम दिस ਇਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 10 10 ਮਾਈਨਸ 10 0। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 10 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 20 ਸੋ 21 ਮਾਈਨਸ 20 1। ठीक है, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 30 32 ਮਾਈਨਸ 30 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨੰਬਰ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਜਸਟ ਇਮੇजिन ਕਿ ਇਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -10 ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ C1 ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ ਟਾਈਮ C2 तो अल्फा की वैल्यू कितनी ले ली -10। ठीक है, इट्स ओके, समझे गल क्लियर है बेटे। सो हुण ऐदां ही थिंक कि इत्थे की लाइए ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਮ 3 ਤੇ ਕੀ ਲਾਈਏ ਕਿ ਕਾਲਮ 2 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਮ 3 ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਾਲਮ 3 ਮਾਈਨਸ ਹਾਂਜੀ 100 ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਟਾਈਮ। ठीक है, मतलब एक यूज है ना वन ऑफ द यूज लेट्स से 100 टाइम्स कॉलम 2। तो ठीक है, कॉलम 3 ते लाया इसका मतलब कॉलम 1 ते कॉलम 2 सेम रहने। ठीक है, सो दैट इज 0 1 2 1 2 3। हाँ जी कॉलम 3 ਤੇ ਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ 100 ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕॉलम 3 ਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ दैट इज 0 ਐਂਡ दैट इज इक्वल टू 300 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਬੋਝ ਘਟ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
चलो अगेन जिन्हें भी एग्जाम्पल करनी है वीडियो पॉज करके खुद एक बार ऑपरेशन सोचने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा मैं तुहानू पुछदा कॉलम 2 ते की ऑपरेशन लाइए, ठीक है, कॉलम 1 यूज करके, ठीक है, कि मेरा कॉलम 2 थोड़ा हल्का हो जाए। अच्छा आ देखो इत्थे की है 1 2 3, इत्थे भी की 1 2 3 नाल पी भी है, ठीक है। तो अगर इनू पी ना मल्टीप्लाई करके एच ओ माइनस कर दिए तो पी 2 पी 3 पी कट जाएगा। तो ऑपरेशन बनता है कॉलम 2 लिखो कॉलम 2 माइनस पी टाइम कॉलम 1, कॉलम 3 की लोड़ ही नहीं, ठीक है। तो जेडे मैनू कॉलम 1 वाले मेरा सवाल हल हो रहा है, तो ठीक है। सो इसका मतलब कॉलम 2 चेंज होएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कॉलम 1 ते कॉलम 3 सेम, ठीक है, कॉलम 1 ते कॉलम 3 सेम, ठीक है। करन नू पुत्र मैं एक टाइम ते एक तो ज़्यादा ऑपरेशन भी ला सकदा, बट मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करना कि काल करन दी लोड़ नहीं, ठीक है। एक स्टैप एक्स्ट्रा लेके जाऊगा कोई फर्क नहीं पैंदा, बट सही होगा, ठीक है, ओके। अच्छा हुण कॉलम 2 की बन जाएगा ऑपरेशन लाने के बाद कॉलम 2 माइनस पी, इमेजिन इत्थे पी हैगा तो पी माइनस पी इत्थे 1 आ जाएगा, 2 पी कट जाएगा, इत्थे कितना आएगा 3 ते इत्थे 6, ठीक है। अच्छा हुण अगेन जस्ट थिंक कॉलम 3 ते बेटे मैं की ऑपरेशन लावां कॉलम 1 ते कॉलम 2 नू यूज करके क्या कॉलम 3 मेरा हल्का हो जाए, ठीक है। हाँ जी अगेन नजर आ रहा है इत्थे की है 1 2 3 1 2 3 इत्थे क्यू आ मतलब कॉलम 1 नू क्यू ना मल्टीप्लाई कर दी है ना, ठीक है, और एच ओ माइनस कर दी। अच्छा इधर की है 1 3 6 इत्थे भी 1 3 6 इनू पी ना कीता ते कॉलम 2 नू पी ना, सो माइनस पी टाइम कॉलम 2, ठीक है। सो कॉलम 3 नू लिख दईए कॉलम 3 चों आ सारी कहानी चों एनू पी ना मल्टीप्लाई कर दो, इत्थे पी हैगा इत्थे क्यू हैगा एन माइनस कर दो। तो इत्थे की है जिवें जस्ट फॉर इंस्टेंस इत्थे आएगा 3p इत्थे 2q एच ओ माइनस कर देंगे कॉलम 3 तो आ थोड़ा उड़ जाएगा। सो कॉलम 3 ते ऑपरेशन लाइए कॉलम 1 कॉलम 2 सेम, कॉलम 1 ते कॉलम 2 सेम, ठीक है। कॉलम 3 माइनस पी, ठीक है, सॉरी एनू क्यू दे नाल एनू पी ना तो आ क्यू प्लस पी कटा जाऊगा, इत्थे 2q आएगा इत्थे 3p अब माइनस करता, ठीक है, आ उड़ गया तो इत्थे आएगा 4 इत्थे आ जाएगा 10। सो आई गेस हुण तुहाडे को सिंपलीफाई छोटा सवाल बन गया इनू सॉल्व कर लो आंसर तुहाडा 1 आ जाएगा, भावें 1 ਤੁਸੀਂ 1 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 0 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ABC ਆਰ ਇਨ AP। अच्छा पहला ABC आर इन AP ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ A plus C is equal to 2B, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ AP ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਆ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈ। ਨੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ A plus C minus 2B is equal to 0, ठीक है। हाले बाकी सवाल के बारे ना सोचो। अच्छा इत्थे A है इत्थे B ते इत्थे C। हुण ये इदां ABC रो च है, पहले तो डिसाइड करो रो च लाना कि कॉलम। सो आ रो है तो अगर मैं जस्ट इमेजिन दिस ऑपरेशन रो 1 नू लिखा रो 1 वो चाहेगा A वो C ऐड कराना है, C के च है रो 3 च प्लस रो 3 इन्ने ना की होएगा A प्लस C आ जाएगा माइनस 2B मतलब रो 2 नू माइनस 2 ना मल्टीप्लाई करे थे माइनस 2 आ जाएगा। So minus 2 time row 2. If I apply that operation on row 1, इना क्या होएगा A plus C minus 2 भी बन जाएगा जिसकी वैल्यू 0 है। So let us try to use that. ये ऑपरेशन कितने लाया पुत्र में रो 1 ते, इसका मतलब रो 2 ते रो 3 मेरे सेम है, ठीक है। रो 2 भी सेम ते रो 3 भी, नीचे एवं लिख दो x plus 2 x plus 3 and x plus b and x plus 3 एक ऑपरेशन के अंदर यू विल सी कि ਤੁਹਾਡਾ आंसर क्योंकि उन्हें प्रूव करने ਨੂੰ 0 किया ना तो मतलब सर्टनली इदा क्योंकि आ ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता कि 3 + 1 / 2 आ भी 2 है तो आ सारी टर्म्स कटिया जानियां। ओके लेट्स अप्लाई R1 ਨੂੰ लिखिया R1 दिस, ठीक है, रो 1 लिखिया रो 1 प्लस रो 3, हाँ जी आ ऐड होएगा कितना आ गया x + 1 + x + 3, ठीक है, -2 टाइम दिस सो कितना आएगा -2x - 4 and you see कि x plus x 2x minus 2x ये भी 0 3 plus 1 4 minus 4 ये भी 0 ऐसे यहाँ की बनेगा R1 this is horizontally 0 this plus this minus twice this so चलो ऐसे लिख लेंगे x plus 2 plus x plus 4 minus 2x minus 6 ऐसे ही x plus a plus x plus c minus 2x minus 2b आ तुसी ऑपरेशन ला के आ वाला ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ रो बन गई। आई गेस आप मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझा चुके हैं आ कट के 0 आ गया ऐसे ही 2x - 2x 0 4 + 2 6 - 6 0
सो x प्लस एक्स 2x कटा गया एंड की बचा a प्लस सी माइनस 2b ਉਹਦੀ वैल्यू भी किन्नी है 0 सो देयरफॉर रो 1 ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ 0 आ गई रो 1 0 आ गई तो वैल्यू ਤੁਹਾਡੀ 0 आ गई ठीक है बेटे सो आई गेस ओके नैक्सट चलते हैं फटाफट अच्छा कहता कि ਇਹਦੀ वैल्यू ਕੱਢੋ अच्छा पहले जो पर्टिकुलरली स्क्वायर्स होंगे ना ए स्क्वायर इदा तो उन्होंने पहले एक बार सोचा करो जिवें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर असीं करते हैं तो उस हमेशा तुहानूं सिंपलीफाई हो सकता है मैं कह रहा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी ठीक है मान लो डिफरेंस सेम है ठीक है जिदा मतलब ए पी के अंदर भी डिफरेंस सेम होंगे चलो हुण ए पी की गल याद है तो जिवें सवाल मैं इत्थे इस तो पहला करा दा जिवें सपोज मैं कहां कि ए बी सी अल्फा बीटा गामा ठीक है लेट्स से ए डैश बी डैश क्वेश्चन लिख लो मैं कहा ए बी सी आर इन ए पी ठीक है एंड अल्फा बीटा गामा आर इन सेपरेट ए पी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर इन सेपरेट ए पी सो आ 3 नंबर ए पी च ठीक है और आ 3 नंबर ए पी च अलग अलग इंडिपेंडेंट ए पीज है यदी वैल्यू लभो ठीक है और यदी वैल्यू तुसी याद भी रखनी है मैं एक बार ड्राइव करा देना अच्छा चलो करते हैं वो कहता ए बी सी आर इन ए पी तो ए नूं ले लिया ए बी हो गया ए प्लस डी सी हो गया ए प्लस 2d ठीक है फिर कहता जी आ भी ए पी है बट सैपरेट ए पी है तो पहली टर्म अल्फा मान ली दूजी कितनी होगी अल्फा प्लस डी एंड अल्फा प्लस 2d ठीक है और आ कितना होएगा ए डैश प्लस डी इहदा डिफरेंस डेल्टा मान लो एंड ए डैश प्लस 2 डेल्टा ए तुसीं ए पी का फॉर्मूला ला के लिख लिया ठीक है मान लिया कोई ए पी क्या तो कितों भी शुरू होएगी वो पहली टर्म मान ली ठीक है मान लो स्टार्ट तो हो रही है ठीक है टर्म जिन्नी मर्जी है तो डिफरेंस ही सेम करना आप ठीक है सो कई बार होंगे कि सर तुम पहली टर्म कितना ला ली बट ए पी है 20 टर्म लिखी है अपन तो फिलहाल इन्होंने तिना मतलब है आ 3 टर्म तो लेट दैट बी फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक अच्छा हुण इत्थे देखो क्योंकि ए पी है तो अगर मैं आ 2d ते d डिफरेंस कट्टा जाएगा इदां ही आ तो अगर मैं कॉलम 2 ते लावां कॉलम 3 ते लावां पुत्र क्योंकि डिफरेंस सेम है तो d माइनस डी कैंसिल हो जाएगा कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 एने ना की होएगा कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कॉलम 3 ते लाया पुत्र कॉलम 1 कॉलम 2 सेम रखे ठीक है अच्छा कॉलम 3 की बनेगा दिस माइनस दिस ठीक है दिस माइनस दिस सॉरी सो ए कटा जाएगा कितना आएगा डी हाँ जी इधर भी कैपिटल डी इधर भी हाँ जी डेल्टा आ समझ गए कॉलम 3 ते लाया उन्हें क्या होगा कॉलम 1 ते कॉलम 2 सेम रहणगे आ कॉलम 2 भी आही रह जाएगा ठीक है समझ गए हालांकि हुण जे कॉलम 2 सेम है इत्थे लाउण नूं मैं फिर कॉलम 2 ते इकट्ठा भी ला सकदा बट स्टिल तुसीं ओह ला के वेखियो तुहानूं एक स्टैप तुहाडा बच जाएगा बट स्टिल हुण मैं की करा ठीक है हुण इत्थे नज़र आ रहा कि इन्हां नूं माइनस कर दिया ए अल्फा ए डैश कट्टा जाएगा सो हुण ला दिया इत्थे कॉलम 2 नूं लाइए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 सो हुण कॉलम 2 चेंज हो जाएगा मतलब कॉलम 1 ते कॉलम 3 सेम रहणगे कॉलम 2 चेंज की होएगा दिस माइनस ए ते की बच जाएगा डी रह जाएगा ठीक है इदां ही इत्थे की रह जाएगा कैपिटल डी ते इत्थे डेल्टा तो अल्टीमेटली तुहाडे को आ ऑपरेशन लाने के बाद ठीक है आ बच जाएगा सो हुण की हो गया सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम सेम वैल्यू 0 ठीक है सो जिवें डिफरेंस सेम हो तो तुसीं जनरली याद रखो कि कोई भी इदा 3 नंबर 1 2 3 यू नो ते 2 4 6 इदा ही यू नो कुछ भी 3 6 9 so they are 3 are independently AP च common difference 1 another common difference 2 another common difference 3 ਇਹਦੀ वैल्यू 0 होएगी ऑब्जेक्टिव्स ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ठीक है चलो इस क्वेश्चन ते आ जाने हुण ठीक है सो लेट्स अप्लाई अगेन स्क्वायर है तो a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा कॉलम 1 नूं लिखिए कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 वर्टिकली सो लेट्स सबस्ट्रैक्ट तो कितना आएगा एक इत्थे एक सिंपलीफाई कर लेने क्योंकि जिदा का यदा आंसर आएगा उधर 2 की जगह 3 आ जाएगा 3 जगह 4 आ जाएगा ठीक है ओके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ जी कितना आएगा ए प्लस बी एक एलिमेंट लिख लिया ना मैं बाकी मैं सिमिलरली लिख दूंगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस एदा माइनस करांगे बेटे कितना माइनस 2 दी पावर एक्स प्लस 2 दी पावर माइनस एक्स सो आ गया 2 दी पावर एक्स हाँ जी आ कितना आ गया बेटे
2 रेस्ट पर x प्लस 2 रेस्ट पर x 2 टाइम्स 2 रेस्ट पर x इनटू सो अभी कितना आ गया 2 टाइम्स टू दी पावर माइनस x सो टू दी पावर माइनस x टू दी पावर x कट के 1 आ गया तो कितना आ जाएगा 4 बस गल खत्म ਇਹਦਾ मतलब ऐदा ही C1 ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ C1 C2 ऐदा ਇੱਥੇ 2 ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਤੇ ਸੇਮ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਐਂਡ ਕਾਲਮ 1 ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਾਲਮ 2 ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ठीक है कॉलम 2 सेम ठीक है हुण वी कैन सी कॉलम 1 चो 4 बाहर कढ़ लो ठीक है इत्थे भी 1 1 1 आ जाएगा सो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 सेम हेंस वैल्यू इज 0 ठीक है ओके हाँ देखते हैं 4 क्रॉस 4 ये भी ऊपर वाले कंसेप्ट अगेन अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लावा लाइक कई जगह सॉल्व किया एक्सपैंड करके प्लस माइनस वो भी ठीक है एक्सपैंड कर दो 16 9 4 एंड सो ऑन तो कट कटा के आंसर आ जाएगा या वैसे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना है हाँ जी 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3 ओके डिफरेंस सेम ही है 5 माइनस 4 का भी सेम है ठीक है 6 माइनस 5 का भी सेम है तो अगर इस हिसाब ना मैं अगर ऑपरेशन लावा कॉलम 4 ते कॉलम 4 क्योंकि मैं कॉलम 1 भी लै सकते हैं बिकॉज वड्डा है ना सो दैट थोड़ा नैगेटिव साइन ना आए इतों करोगे तो नैगेटिव साइन आ जाएगा वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर सेम आएगा कॉलम 4 माइनस कॉलम 3 हाँ जी कितना है कॉलम 4 चेंज किया है कॉलम 1 2 3 सेम है सो हाँ जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3 दैट विल बी 1 ऑल द टाइम सो इत्थे आ जाएगा 7 एंड 9 एंड 11 एंड 13 ठीक है क्यों क्योंकि जिमें 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर दैट इज 7 प्लस 6 इंटू 7 माइनस 6 दिस इज 1 दिस इज 13 ऐदा ही कॉलम 4 चेंज हो गया है मतलब कॉलम 1 2 3 सेम रहे हुण मैं कॉलम 3 ते ला दा कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 हुण कॉलम 3 ते लाया कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 ये मतलब कॉलम 3 चेंज होएगा कॉलम 4 1 2 सेम रहेंगे ये मतलब 4 ते 4 ही तो कॉलम 3 की बनेगा जी दिस माइनस दिस सो 3 प्लस 2 5 एंड 7 एंड हाँ जी 9 एंड 11 ठीक है आई होप समझ आ रहा है जो मैं कर रहे हैं वैसे 4 क्रॉस 4 ऑब्जेक्टिव च ही आता होंगे ठीक है ऐसे हुण कॉलम 3 लाया तो कॉलम 1 2 ते 3 4 सेम है हुण 1 2 भी सेम है मतलब 1 2 जो हैगी वही है हुण मैं कॉलम 2 ते ला दा कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 तो मतलब कॉलम 2 चेंज होएगा मतलब 1 3 ते 4 सेम रहेंगे 1 भी सेम रहेगा 1 स्क्वायर ठीक है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ते 4 स्क्वायर कॉलम 2 की चेंज हो गया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 हाँ जी इत्थे कितना आ जाएगा 3 हाँ जी अगेन 5 7 एंड 9 बस गल खत्म हो गई हुणे तुसीं आ पढ़िया अगेन एपी च नंबर 3 5 7 है ना जे एपी च तो की करीदा तो 2 नूं फिर माइनस कर दो फिर हाँ जी फिर तुसीं ला दो कॉलम 4 नूं लिख दो कॉलम 4 माइनस कॉलम 3 दिस माइनस दिस सो हाँ जी उन्ना क्या होएगा कॉलम 4 विल बिकम दिस इज हाँ जी 2 हाँ जी आ भी 2 2 ते 2 कॉलम 4 चेंज होया आ तीनों सेम फिर मैं कॉलम 3 ते ला दा कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 क्योंकि एदा डिफरेंस सेम है ठीक है सो ये मतलब कॉलम 3 चेंज होएगा कॉलम 1 ते 2 सेम रहेंगे समझा रही गल बेटे 3 5 7 9 हाँ जी कितना आएगा अभी 2 2 2 ते 2 डिफरेंस सेम है जिवें एपी समझाया हुण कॉलम 3 ते कॉलम 4 सेम है डिटरमिनेंट दी वैल्यू 0 आ जाएगी ठीक है बेटे अगर असीं 1 दे व्यू पॉइंट तो करते C1 माइनस C2 तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से माइनस माइनस होना सी फिर कॉमन कर दे क्वेश्चन उदा भी कर सकते सी ठीक है ओके लुक एट दिस प्रॉब्लम दिस इज गुड क्वेश्चन टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी अच्छा अगेन तुसी अगर वेखो पहला तो एवें करते हैं इनू थोड़ा एक्सपैंड करिए बिकॉज आंसर च ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है ठीक है सो एक मैथड हो सकता है इनू लिखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हाँ जी इत्थे कितना बन गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ सेम bc ca ab नाउ तुहानू मैं पूछदा हुण कॉलम 1 ते की ऑपरेशन लाया जाए कॉलम 3 नू वरत के कि आ तुहाडा क्वेश्चन थोड़ा सिंपलीफाई हो जाए कॉलम 1 सिंपलीफाई हो जाए हाँ जी सोचो हाँ जी बिल्कुल की है इत्थे की है BCAC AB BCAC AB इत्थे 2 है
तो इतने इमेजिन 2 ना मल्टीप्लाई करके एच माइनस कर दो, तो बिल्कुल ठीक। कॉलम 1 ला दो, कॉलम 1 -2 टाइम कॉलम 3, तो ऑपरेशन लगेगा कॉलम 1 ते, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब कॉलम 1 की बन जाएगा, ਹੁਣ मैं सीधा कर रहा ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ कॉलम 1 ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ कॉलम 2 ਤੇ कॉलम 3 ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸੇਮ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਦਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਸ ਮਾਈਨਸ ਟਵਾਈਸ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ मैं ਇੱਥੋਂ ਰੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, look at the answer, a square plus b square plus c square, and moreover मैं ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਗੇਨ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, a square plus b square plus c square, a square b square c square, ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡ 2 ਰੋ ਕਾਲਮ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ 2 ਰੋ ਕਾਲਮ ਐਡ 3 ਰੋ ਕਾਲਮ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ। तो अगर मैं कॉलम 1 लिखना कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है, तो आ ऐड हो गया, तो कॉलम 1 होएगा चेंज, कॉलम 2 ਤੇ कॉलम 3 सेम, मतलब आ ਤੇ आ सेम, कॉलम 1 की बन जाएगा आ लाने ਦੇ बाद this प्लस this, ਹੁਣ मैं सीधा लिख रहा this प्लस this की होएगा, कॉलम ऐदा है, ਇਹਨੂੰ ऐदा ऐड ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ a स्क्वायर, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ b स्क्वायर ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ c स्क्वायर। आई गेस ਇਹਨਾਂ समझ आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ, बस ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਆ सेम आ गया ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ठीक है। तो एक ही बन जाएगा ਤੁਹਾਡੇ को, अगेन ਇੱਥੇ मैं ਨਾਲ ही कर रहा, आ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ, तो this will like go as a square plus b square plus c square, ब्रैकेट पाया करो इदा, ਇੱਥੇ आ जाएगा 1 1 1। सो आ वाला फैक्टर बाहर आ गया। आ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ क्योंकि 1 1 1 आ गया, r1 माइनस r2 r2 माइनस r3, ਉਹਦਾ आंसर आ वाला आ जाएगा, ठीक है। ये ਤੁਸੀਂ सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ जी बेटे, सो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा आप प्रूव करना है, तो लुक एट द फैक्टर वी नीड, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है। तो मैं तुम्हें पूछता कॉलम 1 ते की ऑपरेशन लाइए कॉलम 3 नू वरत के, ठीक है, कि इत्थे आ बन जाए, ठीक है। इत्थे बनाने की कोशिश करो। सो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच की ऐड करिए कि प्लस बी स्क्वायर बन जाए, एच ऐड करिए प्लस 2 बी स्क्वायर, ठीक है, सो दैट ये प्लस बी स्क्वायर हो जाए। अच्छा प्लस 2 बी स्क्वायर, अच्छा जस्ट इमेजिन नाउ कॉलम 3 नू बी ना मल्टीप्लाई कर दईए, अगर इत्थे कितना आ जाएगा माइनस 2 बी स्क्वायर, इत्थे 2 ए बी माइनस 2 बी स्क्वायर है, एच फिर कॉलम 1 चो माइनस कर दिए, सो दैट माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। तो अगर आप लाइए कॉलम 1 नू कॉलम 1 माइनस बी टाइम कॉलम 3, सो लेट अस सी की बनता है, तो कॉलम 1 हो जाएगा चेंज, कॉलम 2 कॉलम 3 सेम। और ये अगेन स्कूल च बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर कहना कि जेह्ड़े आ वाला पोर्शन है पहला, ये स्कूल कंपीटीशन लिए कॉमन ही है, क्योंकि कंपीटीशन जो सवाल आते हैं एक तो इन्होंने आते हैं छोटे छोटे ऑपरेशन, अगेन वो इन्ने लंबे नहीं होंगे, बट ऑपरेशन छोटे छोटे जोड़े आप पढ़े, प्लस ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, याद है मैट्रिक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की, सॉरी, सो वह ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, ठीक है। सो आप की करिए हुण पहला आ लाइए गल्लां बाद च, तो कॉलम 1 बदलेगा की होएगा कॉलम 1, ठीक है, इनू बी ना मल्टीप्लाई कॉलम 3 नू फिर माइनस, इत्थे आएगा माइनस 2 बी स्क्वायर, माइनस करांगे प्लस आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इत्थे 2 ए बी ना मल्टीप्लाई, इत्थे भी 2 ए बी माइनस 2 ए बी, आ कॉलम 1 माइनस एनू बी ना मल्टीप्लाई बी टाइम 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, गल खत्म। कॉलम 2 कॉलम 3 सेम, 2 ए बी, ठीक है। चलो माइनस 2 बी, ठीक है, 2 ए एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, हूँ फटाफट करते हैं। हाँ जी, आप पहला एलीमेंट कितना आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ गया 0, इत्थे बी कॉमन कड्डो, तुसी वैसे इत्थे ही सॉल्व करोगे, तुसी साइड पे नहीं करोगे सब्जेक्टिवली, तो कितना आएगा 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी कितना आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी टाइम्स, सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इत्थे 0 तो इत्थे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हुण तुसी अगेन अगले स्टैप ते लिखोगे, मैं की करदा स्टैप बचावां टाइम बचावां
ਤੇ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਇੱਥੇ 0 ਤੇ ਇੱਥੇ b ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ 2 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਾਲਮ 1 ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਾਲਮ 2 ਹੈ ਇੱਥੇ -2b ਹੈ तो अगर इतने a होवे ऐड कर दो 2ab - 2ab 0 ठीक है अगर इतने a होवे तो a स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर ऐड करोगे तो फिर साडा डिजायर्ड आंसर आ जाएगा तो कॉलम 2 नू लाओ कॉलम 2 a ना मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड कर दो a टाइम कॉलम 3 ठीक है सो देयरफॉर की होगा कि कॉलम 2 ते ऑपरेशन लाया पुत्र ਇਹਦਾ मतलब कॉलम 1 ਤੇ कॉलम 3 सेम ठीक है -2b 2a ओके जी लाओ हुण इनू a ना मल्टीप्लाई ते ऐड 2ab - 2ab 0 ठीक है a ना मल्टीप्लाई ऐड हाँ जी इत्थे कितना है 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a ना मल्टीप्लाई एंड ऐड सो थोड़ा लंबा है तो लिख लो गलती नहीं होनी चाहिए a ना मल्टीप्लाई एंड ऐड ठीक है चलो वधिया ए ला के आ गया लेट्स सी की आया साडे कोल एच की आया ए कॉमन कितना आएगा -2 ठीक है +1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो दिस इज -1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस बाहर काट लो 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਹਾਡੇ को आ गया ਤੁਸੀਂ अगेन अगले स्टेप ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ पूरा सारा छापोगे ਦੁਆਰਾ मैं ਇੱਥੇ आई हैव द कन्वीनियंस आई हैव द लिबर्टी टू डू दैट ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਚੋਂ 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਗੱਲ ਖਤਮ ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਆ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 12 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਕੁਆਇਰ ਹੁਣ आई गैस ऑलमोस्ट डन है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਲੈਟਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾय रो 1 ठीक है रंग बदल लीजिए रो 1 क्यों क्योंकि कहते 0 है सो कितना आएगा 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर द स्क्वायर +1 हाँ जी दिस गोज एनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 - a स्क्वायर - b स्क्वायर माइनस प्लस 2a स्क्वायर ਇਹਦਾ -0 ਇਹਦਾ प्लस ऑफ -2b हाँ जी दिस गोज 0 - b ठीक है अभी आंसर आ जाएगा ये देखो सो आ कितना आ गया +2a स्क्वायर - a स्क्वायर हाँ जी व्हाट इज दिस इज 1 + a स्क्वायर -b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर +2b स्क्वायर ये भी +b स्क्वायर वैसे आना ही है ठीक है वो वैसे भी तुम करके धोखा जा करके ना लिख दिया करो ठीक है हम जे तो चैक करने लगे अगले ने पढ़ लिया ठीक है फिर तो फस जाओगे जो वैसे लिखता ठीक है चलो ओके गुड नैक्सट क्वेश्चन ओके कहता अप्रूव करो ये बराबर है ठीक है आंसर वाल देखो 1 - x स्क्वायर ओके आ रो 1 है आ रो 2 है ठीक है इतों हिंट लगता देखो मैं पहले तुहानू सोचने टाइम देवां रो 1 ते की ऑपरेशन लाइए ठीक है रो 1 ते की ऑपरेशन लाइए रो 2 नू यूज करके क्या बन जाए लुक एट दिस अगर रो 2 नू x ना मल्टीप्लाई करिए इत्थे कितना है ax स्क्वायर इत्थे bx माइनस करांगे a कॉमन 1 - x स्क्वायर आ जाएगा ठीक है सो रो 1 नू लिख दो रो 1 - x टाइम्स रो 2 ठीक है सो रो 1 ते लाया है ते रो 2 रो 3 सेम ax + b px + q and u v and w ठीक है बेटे सो रो 1 दिस -x टाइम रो 2 सो हमेशा आंसर नु दिमाग च रखो ठीक है थोड़ा उत्ते विचारो आइडिया लग जाएगा दिस a + bx -x टाइम दिस -ax स्क्वायर - bx and then this c + dx - x टाइम this cx स्क्वायर
ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਐਕਸ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਰੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ R1 ਚ ਮਾਈਨਸ, ਸੋ ਪੀ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਐਕਸ। ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋ 1 ਦੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਬੀ ਐਕਸ ਨਾਲ ਬੀ ਐਕਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਐਕਸ ਨਾਲ ਡੀ ਐਕਸ, ਕਿਊ ਐਕਸ ਨਾਲ ਕਿਊ ਐਕਸ, ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਚ ਆ ਗਿਆ a ਕਾਮਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ, ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਚੋਂ c ਕਾਮਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ p ਕਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ a c p, ਠੀਕ ਹੈ, a x plus b c x plus d and p x plus q u v w। ਆ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਰੋ 1 ਤੇ ਜਾਂ ਰੋ 2 ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੀਏ, ਰੋ 2 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਰੋ 1 ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ? ਜਸਟ ਥਿੰਕ, ਰੋ 2 ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋ 1 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਰੋ 2 ਤੁਹਾਡੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ACP, ਇੱਥੇ ਵੀ ACP, ਬਟ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੋ AX ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, CX ਤੇ PX। ਸੋ ਰੋ 2 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਰੋ 2 ਮਾਈਨਸ x ਟਾਈਮ ਰੋ 1, ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਰੋ 2 ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਰੋ 2 ਮਾਈਨਸ x, ਇਹਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, IX ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, CX ਤੇ D। ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ B, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ D ਤੇ ਇੱਥੇ Q। ਸੋ B D ਤੇ Q, B D ਐਂਡ Q, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਈ ਗੈਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਬੇਟੇ? ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪਏ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਕੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆਨਸਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ABBCCA, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈ A ਸਕੁਆਇਰ B ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ C ਸਕੁਆਇਰ। A ਸਕੁਆਇਰ B ਸਕੁਆਇਰ C ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ABBCCA ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ B ਨਾਲ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ A ਸਕੁਆਇਰ B ਸਕੁਆਇਰ C ਸਕੁਆਇਰ ABBCCA 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਵ ਅ ਪੌਜ਼, ਖੁਦ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਐਡ ਕਰੋਗੇ A ਸਕੁਆਇਰ B ਸਕੁਆਇਰ C ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ABBCCA 'ਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੈਟ ਅਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ A ਚੋਂ ਇੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ 'ਚ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ ABC। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? AB ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ ABC, AC ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ ABC। ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ B ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ B ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, A ਸਕੁਆਇਰ B ABC ਮਾਈਨਸ ABC AC ਸਕੁਆਇਰ B C ਸਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ प्लस ABC, थर्ड नो C ना, A स्क्वायर C प्लस ABC, B स्क्वायर C प्लस ABC एंड माइनस ABC। अच्छा, रो वाइज मल्टीप्लाई करके कॉलम वाइज कड्डो। कॉलम वाइज कैन भी सी के इथों A इधरों भी A, ठीक है, तो इधरों भी A कॉमन आ जाऊगा, ठीक है। और पहले कॉलम चो A कॉमन कर लो, दूजे चो इधरों B, आ वाला जो डॉट किते ना वो B कॉमन आ जाऊगा, और फिर लास्ट कॉलम चो C। सो टेकिंग, ठीक है, C A B C इतने नाल मेंशन कर दो कि टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। तो इदा करन दे नाल, ठीक है, सो A इथों कॉमन, B इथों तो C इथों, बाहर की आ जाएगा A B C बाय A B C, ठीक है। इत्थे की बचेगा A कॉमन, सो जे थले अंडरलाइन किते वो एक कॉमन आ गया, तो माइनस BC, इत्थे एक A उड़ गया,
ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए सी प्लस बी सी। हाँ जी, इधरों बी कॉमन, ए बी प्लस ए सी एंड माइनस ए सी, ठीक है, बी सी प्लस ए सी एंड सी कॉमन, ठीक है, ए सी प्लस ए बी, ठीक है, हाँ, बी सी प्लस ए बी एंड माइनस ए बी। ओके, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਬੀ ਪਲਸ ਬੀ ਸੀ ਪਲਸ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏ ਬੀ ਪਲਸ ਬੀ ਸੀ ਪਲਸ ਸੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋ ਰੋ ਵਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਮਾइनस बी सी प्लस बी सी कटेगा, की बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ऐदा ऐड करोगे ए सी कट जाएगा। सो आर वन लिखो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है, आई गैस गल समझ आ गई, क्योंकि कॉलम वाइज कर दो तो नहीं बन रहा, कॉलम वाइज नहीं बन रहा, थोड़ा रो वाइज बन रहा। सो इस करके वो चेक कर लेना कि रो वाइज ऐड करिए या कॉलम वाइज ऐड करिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स अप्लाई आर वन, ठीक है, समझ आ रही गल बेटे, आर वन लिख दो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सो आ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। समझ आ रही गल बेटे, ਇੱਥੇ ਵੀ ए सी ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इधर भी ए बी ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। सो ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ रो बन जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ਤੇ मैं की करूँगा ਉਹਨੂੰ मैं कॉमन कर लूँगा, ठीक है। सो दैन दिस कम्स आउट ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 1 एंड 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੋਮਵਰਕ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਮ 1 ਐਸ 1 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ C1 ਮਾਈਨਸ C2 1 1 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਦ ਮੋਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, C2 ਮਾਈਨਸ C3 ਆंसर ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है बेटे, ठीक है। एक स्टेप चाहिए कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा, ठीक है, ओके। उस तो बाद आ कर दें, लेट्स सी, दिस इज आल्सो ट्रिकी, लाइक स्टार्ट करना जरूरी है, स्टार्ट किवें करना नो। ये है पुत्र कि आंसर वेखो, हाँ, और असी जिवें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहला ही करांगे, पहला ऐड करके देखो, देखते हैं कि यार ए प्लस बी प्लस सी वाला फैक्टर तो नहीं आ रहा, बट वंस यू डू तो ऊपर ऐड करो नहीं आ रहा, रो वाइज करो 3A प्लस समथिंग आ रहा, 3B नहीं है, कॉलम वाइज करो नहीं आ रहा, ठीक है। सो ए वाला भी नहीं आ रहा, दूजा भी नहीं आ रहा, तो ये हुण किदां ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किवें बनाया जाए, ठीक है। तो वो ऑलरेडी पता है कि आप की करते हैं कि पहली रो नू ए ना मल्टीप्लाई कर देने, ठीक है, और या अच्छा ए स्क्वायर बनाना, पहले कॉलम नू कर दें सो दैट इत्थे ए स्क्वायर बन जाए। सो पहले कॉलम नू ए ना मल्टीप्लाई, दूजे नू बी ना, तीजे नू सी ना मल्टीप्लाई करांगे तो बाहर मैं डिवाइड भी करता, गल समझाइए, सो दैट आई कैन मेक दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। सो पहले कॉलम नू मैं ए ना मल्टीप्लाई करा, सो व्हाट आई एम गोना गेट ए स्क्वायर ए सी ए स्क्वायर ए बी, दूजे नू बी ना बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी, तीजे नू सी ना सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी एंड सी स्क्वायर। आ गल समझाई, अंदर मल्टीप्लाई करके बाहर डिवाइड करता। हुण देखो, नाउ इफ टू गेट दिस फैक्टर एंड इफ आई सी ना कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम नू ऐड करो, की होएगा माइनस बी सी प्लस बी सी कटा जाएगा, प्लस ए सी माइनस ए सी कटा जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कटा जाएगा। नाउ आई मस्ट अप्लाई C1 नू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 ते लाया, ठीक है, तो की होगा इत्थे आ गया, हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ जी, इत्थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इत्थे भी ए स्क्वायर प्लस, हुण C1 चेंज हो गया, C2 C3 सेम, ठीक है, समझ गल। तो C2 C3 मैं सेम लिख देना, इत्थे मैं एक स्टैप होर बचावां, C2 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ B ਨਾਲ, C3 ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ C ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ B ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ C ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ B ਤੇ C ਬਾਹਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਸੋ ਰਿਵਰਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, C2 ਚੋਂ B ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, C3 ਚੋਂ C, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ B ਕਾਮਨ ਕੱਢੋਗੇ ਇਸ ਕਾਲਮ ਚੋਂ, ਕੀ ਬਚੇਗਾ B ਮਾਈਨਸ C B एंड सारा पर्पस हल हो गया ना, कॉमन आ जाएगा, क्वेश्चन हल्का हो गया। ये जो C कॉमन कर दो, C प्लस बी C माइनस ए एंड C, ठीक है, ए चो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C स्क्वायर आ कॉमन,
ठीक है, बस गल खत्म। हुण मेरे हिसाब नाल क्वेश्चन थोड़ा मेजर दो फैक्टर बाहर कढ़ने, एक तो बन ही गया तो फिर की करांगे, आई गैस 1 आ जाऊगा बाहर, बी सी कटिया गया, ठीक है, नीचे रह गया 1/a और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इत्थे आ गया 1 1 1 ते कंप्लीट करो, ठीक है। अगेन 1 1 1 गया R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। सो तुहाडा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਇੰਟੂ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c, ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦੈਟ a ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ a ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਆਇਰ a ਸਕੁਆਇਰ। ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇੰਟੂਟਿਵਲੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਦੈਟ 4th डिग्री ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਆ a ਸਕੁਆਇਰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ c ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ a ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਆਇਰ, ਵੱਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ R1 ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, R2 R3 ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 0 ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਆ b ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਆਇਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, तो R1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ R1 माइनस R2 प्लस R3। सो एस लाइन ऑफ एक्शन ना शुरू करो। रो 1 एनू ऐड करके, रो ऐदा बेटे नीचे वाले ऐड करके माइनस करता, तो रो 1 चेंज हो गया, ठीक है, रो 1 चेंज हो गया तो की करिए, सो की होएगा दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस प्लस दिस, आ 0 आ जाएगा। इत्थे कितना आएगा a स्क्वायर माइनस एना दी एडिशन, सो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। इत्थे कितना आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस a square plus b square, ठीक है। लेट अस सी व्हाट वी गेट, R2 R3 सेम, ठीक है, एंड a square plus c square b square एंड चलो अच्छा हुण की होगा माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर ने a स्क्वायर कटा गया, इधरों भी a स्क्वायर ने a स्क्वायर, तो इत्थे की आ गया माइनस 2c स्क्वायर, इत्थे माइनस 2b स्क्वायर। तो मैं की करदा, मैं ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 2c ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਮਾਈਨਸ 2b ਸਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ 2 ਵੀ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ c ਸਕੁਆਇਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ b ਸਕੁਆਇਰ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੋ 2 ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਰੋ 2 ਤੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋ 1 ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਈਨਸ c ਸਕੁਆਇਰ ਉੱਡ ਜਾਊਗਾ, b ਸਕੁਆਇਰ ਉੱਡ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। सो रो 2 ਨੂੰ लिख दो रो 2 माइनस रो 1, ठीक है, ठीक है, वो क्या कटेगा c स्क्वायर कट जाएगा b स्क्वायर। ऐसे रो 3 ਨੂੰ रो 3 माइनस रो 1, c स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ भी 0 आ जाएगा, h माइनस करोगे b स्क्वायर कट जाएगा। सो आ दो ऑपरेशन ला दो, रो 2 ਤੇ ਵੀ ਤੇ रो 3 ਤੇ ਵੀ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ला दो रो 3 माइनस रो 1। सो हाँ जी किदां, रो 2 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ रो 2 माइनस रो 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ रो 2 ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, रो 1 रो 3 सेम, रो 3 भी सेम है तो रो 1 भी सेम है। हाँ जी, बी स्क्वायर माइनस 0 बी स्क्वायर, दिस माइनस दिस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0। रो 2 चेंज हो गया, रो 1 हले भी आही है, ठीक है, एंड रो 3 हले भी आही है। हुण अगले स्टेप ते फिर मैं आ लाता रो 3 ਨੂੰ रो 3 माइनस रो 1, तो रो 3 की लिखांगे रो 3 दिस माइनस रो 1। हाँ जी, सी स्क्वायर माइनस 0 c square माइनस c square 0 एंड दिस माइनस दिस a square। That's it, I guess इन्ना हुण काफ़ी है, हुण काफ़ी छोटा हो चुका है क्वेश्चन, हुण तुसीं इहनूं एक्सपैंड कर लो, ठीक है। इहदा इवेंचुअल आंसर आ जाएगा -2 है, इहदा भी -2 टाइम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, सो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अच्छा इत्थे ना कई जगह जिद्दां तुहाडे आई गैस टैक्सट बुक दे अंदर उहनूं इदां भी लिखिया हुंदा है, हाँ इदां, इत्थे स्क्वायर नहीं हुंदा, ठीक है। एक दूजा क्वेश्चन लिख लो ये नाल ही, ठीक है, वो लिखा होंगे इदा लाइक इदा ए बी ए सी, फिर इतने ए बी बी सी एंड इतने ए सी तो बी सी। प्रूव आही करना होंगे 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो हुण तुसीं खुद दसो, इन्नी बार मैं करा चुकिया, पहला स्टैप की करांगे, इत्थे ए बी बी सी सी ए है तो इन्हों ए बी बी सी सी ए नूं किच कन्वर्ट कर लांगे, हाँ जी किच a स्क्वायर b स्क्वायर ते c स्क्वायर कन्वर्ट कर लांगे।
ठीक है। सो उन्होंने रो वाइज मल्टीप्लाई करके कॉलम वाइज कर लो, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, फिर जिवें दस सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा, मेरे ओपीनियन च ना जिदा क्वेश्चन है पुत्र ये क्योंकि बहुत सब्जैक्टिव है, स्कूल च आਉਂਦਾ है क्वेश्चन, और मतलब ये स्टैप्स जनरली इफ यू जिन्हें पहली बार करना है तो खुद इनोवेट नहीं होंगे समटाइम्स, तो क्योंकि मैथ्स मैं कभी कहना नहीं भी याद कर लो है ना, ਅਸੀਂ कहना भी लॉजिकली समझो, बट ये ऑपरेशन आई रिकमेंड कि दिमाग च रखो, याद रखियो। ठीक है। अच्छा, अगर तुम पिछले सवाल ਨਾਲ कंपेयर करो लगभग उदा ਦਾ ਹੀ है। पहला क्वेश्चन की ਸੀਗਾ लाइक अगर मैं वाई जैड की जगह उत्थे ए बी मान लो, तो पिछला सीगा इत्थे आ वाई स्क्वायर प्लस जैड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। पिछले सीगा ना लाइक बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी एंड सो ऑन, तो वाई जैड की जगह उत्थे ए बी सीगा, बट इत्थे वाई स्क्वायर प्लस जैड स्क्वायर सी, इत्थे होल स्क्वायर है। ठीक है। सो कई बार नियाणे गलती कर जाते हैं ये। सो पहला सीगा पिछला क्वेश्चन च वाई स्क्वायर प्लस जैड स्क्वायर, इत्थे है वाई प्लस जैड का होल स्क्वायर। तो लैट्स नॉट वेस्ट टाइम, बिगिन करिए। कीपिंग दिस फैक्टर इन माइंड, कॉलम 2 ਨੂੰ लिखो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, वाई बिकॉज ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ਦਾ। ठीक है। सो कॉलम 2 ਨੂੰ कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ਇੱਦਾਂ कॉलम 3 ਨੂੰ कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, सो दैट आ फैक्टर आ जाए। सो लेट अस अप्लाई these two and let's see what happens। कॉलम 2 चेंज किया तो कॉलम 1 ते कॉलम 3 सेम। ठीक है। ठीक है। सो कॉलम 2 की होया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर एंड दिस माइनस दिस एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐदा ही जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जीरो। सो कॉलम 2 चेंज हो गया, कॉलम 1 ते कॉलम 3 सेम, फिर अगले स्टैप ते कॉलम 3 ते लता कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 1 ते हुई है, तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कितना होएगा एक्स स्क्वायर माइनस। सो अगर तुहानू हुण समझ आना शुरू होया तो दो इकट्ठे भी ला सकते, बट उस ख्याल रखना कि ऐदा ना होवे कि वो ਜਿਹੜੇ रो ते या कॉलम ते ऑपरेशन लाया वो डिलीट हो गया फिर वो वरती जाओ। ठीक है। जे कभी भी कन्फ्यूजन आता फिर स्टैप बाय स्टैप कर लो, फिर कुछ इकट्ठा करने की लोड़ नहीं, पहला करो फिर दूजा करो। ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो एंड एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है बेटे। सो लेट अस अप्लाई हुण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इत्थे लग जाएगा। सो आ तुहाडे को आ गया वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, इत्थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। ऐदा ही इत्थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है। सो ऐदा ही तुसीं इत्थे वाई स्क्वायर, हाँ जी, एक्स प्लस जेड प्लस वाई एंड एक्स प्लस जेड माइनस वाई, इत्थे जीरो, हाँ जी, जेड स्क्वायर जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई माइनस जेड। समझा रही गल? बस ठीक है। हुण की कॉमन आ रहा पुत्र वेखो जरा, पहले सॉरी दूजे कॉलम चो इत्थे जीरो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। ठीक है। और तीजे कॉलम चो भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। ठीक है। सो पहले सेकंड कॉलम चो कॉमन काट लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, थर्ड चो भी बाहर आ गया स्क्वायर, की बचा है पहला कॉलम, हाँ जी, ए प्लस बी स्क्वायर ला दो बेटे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू वाई जेड। ठीक है। वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, हाँ जी, इधरों कॉमन आ गया तो कितना आ गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड एंड जीरो। हाँ जी, इधरों भी इदा ही एक्स माइनस वाई माइनस जेड जीरो एंड एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है। ओके, चलो इत्थे तक पहुँच गए आप। हुण मैं तुहानूं पुछां अगर कि रो 1 ते की ऑपरेशन लाया जाए, इनू वेख के रो 2 रो 3 वरत के क्या थोड़ा हल्का हो जाए। सो इस एलीमेंट नूं किवें हल्का करिए, बिल्कुल आ रो 1 है, रो 1 नूं लिख दईए रो 1 माइनस, इन्हां नूं ऐड करो तो माइनस कर दो तो आ उड़ जूगा। सो R2 प्लस R3 आ वाला ऑपरेशन लाओ। ठीक है। समझ गल बेटे? सो इन्ना की हो गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वेयर, तीजा ऑपरेशन हो गया। ठीक है। सो रो 1 मतलब हॉरिजॉन्टल उन्हें लिखा, दूजी तीजी रो ऐड करके पहले चो माइनस, सो सीधा लिख देने। सो इत्थे आ जाएगा 2YZ। ठीक है। हाँ जी, एनू लिखा, ठीक है, एनू ऐड करके एचो माइनस,
ठीक है ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ this minus this x minus x ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ y plus y ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ z ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 2z ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 100 ਇਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ x ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 2y ਆ ਜਾਏਗਾ ठीक है बस ऑलमोस्ट देयर ठीक है ऑलमोस्ट पिया हले 2 स्टेप है ना चलो क्वेश्चन थोड़ा जिहा हुण लाइट वेट हो गया ठीक है बेटे ओके हुण इफ आई आस्क यू कॉलम 2 ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਾਲਮ 1 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ -2z y ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਹੁਣ y ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਾਲਮ 1 ਨੂੰ y ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2z -2z 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ y ਹੈ z ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਲਮ 1 ਨੂੰ z ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ तो दो ऑपरेशन लाने हैं कॉलम 2 नु लिखो कॉलम 2 प्लस 1 बाय y टाइम कॉलम 1 इनू y ना डिवाइड करता और h ऐड करता y ना डिवाइड करांगे या 2z रह जाएगा 2z 0 सो 2 0 5 नहीं ਇਹਦੇ कॉलम 3 ਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ कॉलम 3 ਇੱਥੇ y ਹੈ z ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 1 by z टाइम कॉलम 1 so let us apply these two operations so ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਇਹ एक या कॉलम 2 ते ठीक है सो ਇਹਦਾ मतलब कॉलम 1 सेम रहूगा ठीक है हाँ जी लाओ ऑपरेशन जरा हुण की है कॉलम 2 ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ कॉलम 1 डिवाइड बाय y कॉलम 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰੋ y ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਇਮੇਜਿਨ ਇੱਥੇ y ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ 2z ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ 2z हाँ जी ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਚ की ऐड करना y ना डिवाइड वाई स्क्वायर बाय वाई ठीक है हाँ जी ਇਹਦੇ ਚ ऐड करना की ऐड करना है प्लस की डिवाइड बाय वाई जेड स्क्वायर बाय वाई गल खत्म ठीक है हम सिंपलीफाई हो जाएगा कट जाएगा ऐदा ही कॉलम 3 ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ मतलब कॉलम 3 चेंज होएगा की चेंज होगा कॉलम 3 ਇਹਨੂੰ z ਨਾਲ डिवाइड करके कॉलम 3 चेंज होगा कॉलम 1 कॉलम 2 तो सेम रहेंगे सो हाँ जी कितना आ गया कॉलम 3 ਚ लिखो हाँ जी की पहले ਨੂੰ z ਨਾਲ इमेजिन ਇੱਥੇ ਹੁਣ z डिवाइड हो चुके तो 2y by z 2y आ जाएगा सो प्लस 2y 0 ਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ z ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ y square by z ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ z ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ z square by z z ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਸ ਹੁਣ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੀ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ठीक है तो z भी कटेगा सो लेट्स सी व्हाट वी गेट क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ सो x plus y plus z ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਠੀਕ ਹੈ 2yz 0 0 y square and x plus z ठीक है and y square by z and z square by y and x plus y now क्योंकि मेरे को 2 0 आ गया है रो 1 so let me expand by रो 1 so expand by r1 हाँ जी कितना आ जाऊगा so x plus y plus z दा square so plus 2yz हाँ जी this goes हाँ जी एनू ऐदे ना समझा गल x plus y into x plus z माइनस एनू ए देना सो करांगे तो y ना y कट जाऊगा z ना z y z आ गया बस एक हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है सो बस आई गेस हुण सानू पता है कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर है वो की आना चाहिए 2 ठीक है फैक्टर देख लो ना की किसी फैक्टर से 2xyz तो आ स्क्वायर तो ऑलरेडी आ गया तो ਇਹਦਾ फैक्टर बनेगा 2xyz into x plus y plus z आप बनना चाहिए ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ आंसर आएगा ठीक है सो चलो सो x plus y plus z square ठीक है 2yz हाँ जी x square plus xz plus xy plus yz minus yz ठीक है दिस गोज ऑफ हाँ जी एच ओ की कॉमन आ रहा है x इतने कॉमन ले लो
x plus y plus z ਦਾ होल स्क्वायर कितना आ गया 2x y z आ वाला इनटू की बचा x plus z plus y which is nothing but we were looking for हो एनु क्लब कर दे देना सो आंसर को हम हरे अक्षरों में लिखेंगे x plus y plus z ਦਾ क्यूब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਕੇ इनटू 2x y z ठीक है आंसर आ गया ठीक है सो जिवें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕੂਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਹਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਗੈਸ ਇਹ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ